class. If anyone is joining, then we will see. Okay. So, yes, Sachin, any joy? Are you able to respond right now? Okay. Sachin, अगर मेरी आवाज सुन रहा है, then you can unmute yourself. अपने आप जो माइक है अपना वो उसको ऑन करके, and even I want that you should switch on your video also, so that we should have some conversation, because you are new arrival. I'm not knowing anything about you. You are the fresh admission, or even you have changed from some other subject. So we need to know each and everything, because you are the part and parcel of this class and even this group. So I don't know what is the reason why you are not responding, and you must be familiar with the system of this Zoom class also. All the functions you may be aware, because now I can observe that this generation, this right now what generation is there, that is quite smart in operating the mobile phones and so many other functions. So in that case, I am not expecting any problem you are facing, but still you are not responding. I don't know what is the reason, but still today I will try to contact you on the mobile. Okay. So yes, Kunjan, after a long time, I think 3 to 4 days you have missed the class. So I know that you are having that problem. So even I sent the recording also, that you must have seen. Well, now you tell me. Okay, Anshul will tell me which are the example or which are the activities coming under exogenic process. जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं. लाइक एंडोजेनिक में हमने देखी थी डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म. These are the example of activities and coming under endogenic geomorphic process. Now you tell me some activities that are being done in exogenic geomorphic process. कौन कौन सी हैं वो? Yes, Anshul. Weathering, chemical weathering, physical weathering process. I'm not asking about weathering. Weathering I'm not asking. I'm asking एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की जो एक्टिविटीज होती हैं. लाइक एग्जांपल आई गिवन ऑफ एंडोजेनिक, वो बताने हैं मुझे नाम. कुड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? ट्रांसपोर्टेशन. चलो बताते रहो. Sir, deposition. Yes, deposition is the right word. No doubt the transportation is being processed in this, but again transportation, that is the right or suitable word. Okay. Then Sir, erosion. Okay, erosion, yes. Denudation. So denudation is the main process under which all these activities are coming. I am coming on that part also. लेकिन उससे पहले 4 एक्टिविटी हैं जो 2 तूने बता दी. All together, mass movement and weathering. Wearing and tearing of rocks. Then again, after wearing and tearing, there is a mass movement. वो पूरा का पूरा मटेरियल that is again moving from one place to another place. Then comes erosion. जब वो पूरा का पूरा मटेरियल मूव करता है along with the water, you take the example, अगर वो मूव करता है, that time some erosion is taking place, and then at the last somewhere these materials are being deposited. So that work is deposition work. Okay, so these are the 4 different activities coming under
exogenic geomorphic process. Okay, then Himanshu, you tell me about the denudation. How you can define denudation? सर ये नहीं आता. क्यों नहीं आता? पढ़ा था? It is कल की क्लास में ना. very clearly it is given in your NCERT book, and then don't tell me I don't have NCERT book. If you have decided to be in this stream, then you must purchase your all the NCERT books as soon as possible. Okay. Yes. Okay, Tushar, you define this definition, denudation. Very simple. Sir, denudation involves the process of cause the wearing away of the earth's surface. Yes, repeat it. The wearing away of the earth's surface. Earth's surface. Okay. Denudation means to strip off and to uncover the things available on earth surface. पूरे अर्थ सरफेस को ही उड़ा देगा, that cannot be. अर्थ सरफेस के ऊपर सपोज कोई रॉक्स हैं, उनको डेनुडेट करते हैं. देन अनदर सॉर्ट ऑफ लैंड फॉर्म इफ इट इज देयर, उसको डेनुडेट करना मीन उनको स्ट्रिप करना, उनमें से कुछ पार्ट वहां से हटा देना. सो दैट इज द डेनुडेशन. और ये डेनुडेशन में ही ये चारों चीजें आती हैं. विदरिंग, देन विदरिंग के बाद आ गया मास मूवमेंट, इरोजन एंड दैट इज डिपोजिशन. ये सारे के पूरे जो हैं ये सारी चीजें आती हैं. दैट इज कमिंग इन द डेनुडेशन. Yes. Okay, then which are the main elements responsible for denudation? सबसे ज्यादा इसमें denudation जो होता है या withering होती है, वो कौन से एलिमेंट्स की वजह से होता है? ओके, खुशी, कैन यू टेल मी कौन कौन से एजेंट्स हैं या किस किस की वजह से जो मेन denudation होता है, एंड वो ज्यादातर इसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं? यस, खुशी. ओके, हिमांशु, यू टेल मी. Sir, by waves, by water, by. Exactly, waves, that is also responsible, but I am asking main elements. So that is again you are telling about the water. So in place of telling water, you should tell Yes, sir. precipitation, because precipitation is more Yes. suitable word in this. Then another one is temperature. दूसरा है temperature and precipitation. These are the two main factors responsible for these type of activities. Then other than this, other than precipitation and that temperature, anything else that that can be told by? Okay, Ananya, you tell me. Precipitation and the temperature, ये दोनों तो main elements हैं ही. Other than that, what is given in the book and even yesterday we have discussed, क्या चीज थी वो? Sir, density and type and distribution of vegetation. Okay, that can be. लेकिन उससे पहले एक और important point है जो withering के अंदर काफी कुछ हद तक you can say responsible है, या फिर उसकी वजह से कम ज्यादा होता है. But that these are the varying factor. Varying factor क्या है कि that withering or exogenic geomorphic process, that is varying from place to place because of so many climatic regions are available, and in that you know that precipitation, that is also differing place to place. कहीं पर precipitation ज्यादा होती है, and about the temperature also, temperature भी कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है. These are the main factors. Other than that, different type of rocks
कि rocks में किस टाइप की rocks हैं. Some rocks are hard, some rocks are soft, and some rocks are in between, that is medium type. And how that particular resistance is there in that different type of rocks. कुछ resistance होता है जो कि oppose करता है in different type of agents. जैसे water है, पानी कहीं लगता है तो somehow or somewhere you will see that rocks are opposing because that is having some resistance. तो वो उनकी क्वालिटी के ऊपर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि which type of resistance that is applied by or that opposing that by rocks. तो ये type of rocks भी होती हैं कि उन पे कहाँ पर कितना विदरिंग होती है, कितना एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है उसमें, विदरिंग या फिर मास मूवमेंट या फिर इवन इरोजन एंड डिपोजिशन होता है इनकी वजह से. Okay, then Pihu, you tell me the refined definition of weathering. इसको somewhere you will see weathering also. कहीं ना कहीं इसका जो pronunciation है वो weathering भी तुम सुनोगे, but correct pronunciation is weathering. Okay, weathering की definition बता दो. Sir, it is mechanical disintegration and chemical decomposition of rocks. Oh, very correct. So whatever the action that is being done by the elements of weather and climate on the earth surface or the whatever landforms are there on earth surface, उनके ऊपर जो भी actions होता है that is known as weathering. क्योंकि action होता है तो उसमें wearing and tearing is taking place, टूट फूट होती है, तो that is only weathering. In geographical terms we can say that mechanical disintegration and chemical decomposition. Mechanical disintegration क्या होता है कि कोई भी rocks हैं उनका disintegrate होना, उनका टूटना फूटना mechanically, and chemically decomposition. Decompose होना means वो chemical reaction से decompose हो जाती है और उसमें cracks आ जाते हैं, then that again denudation is taking place, या weathering is taking place. So this is the definition of weathering. How many types of weathering that okay, Himanshu, you tell me how many types of weathering is there? No, sir. No means what? तो डाउट तो इतने पूछता है, फिर ये जब पढ़ता है तो फिर ये मेन चीजें तो तू पढ़ता नहीं है, फिर तेरे डाउट्स कहाँ से आते हैं? सो सिंपल. इसमें कल हमने डिस्कस किया था, तो इतना तो ध्यान होना भी चाहिए. ओके, हु इज लेफ्ट विद? कल ही तो नहीं था. कल नहीं था. देन आई सेंड रिकॉर्डिंग आल्सो. मैंने तो रिकॉर्डिंग Yes, sir. तो रिकॉर्डिंग सुनता. ओके, हु कैन टेल मी वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ Yes, sir. weathering? If I'm not wrong, yesterday we have discussed at least उनके दो पार्ट भी किए थे. एक के no one, and this is so simple. I don't know why you are not remembering. Okay, no one. So then first one is chemical, then physical or mechanical, and then third one is biological weathering. तीन टाइप की weathering होती है, जिनमें से हमने chemical weathering के बारे में पढ़ा था. इसमें solution, then carbonation, hydration, and then oxidation and reductions. These are the different categories of chemical weathering. अब बात आती है, हमने दो पढ़ लिए थे, that is solution and carbonation. Solution में in very simple way we can see that in some of the rocks some minerals are there which are soluble in the water or even some weak acids. जो पानी में या फिर weak acids होते हैं उनमें soluble होता है कोई भी mineral, because of that solution disintegration in the rocks that is taking place. Disintegration means cracking, some cracks, or you can say breaking down of
the rocks that is started with the help of solution. क्यों? Like suppose some of the, you can say, different minerals, नाइट्रेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, देन पोटेशियम, ये ऐसे मिनरल्स हैं विच आर सोल्यूबल इन वाटर. एंड इफ दीज मिनरल्स आर अवेलेबल, मींस यू कैन से लाइंग इन एनी ऑफ द रॉक्स, फिर वो रॉक्स में से किसी भी जगह पर अगर ये मिनरल्स हैं, एंड व्हेन द वाटर इज कमिंग इन कांटेक्ट, तो वो पानी के साथ घुल जाते हैं वो, और घुलने की वजह से दे आर जस्ट लिविंग दैट स्पेस. वो जहां पर होते हैं वहां से वो जगह खाली हो जाती है, देयर इज अ गैप, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट क्रैक्स आर डेवलप्ड इन दैट. तो वो जो क्रैक्स हो जाते हैं जगह छोड़ने की वजह से, सो दैट इज ओनली विदरिंग, जो कि सॉल्यूशन की वजह से होती है. देन कार्बोनेशन. कार्बोनेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स आर क्रिएटेड इन द रिएक्शन व्हेन these minerals, some minerals are again coming in the contact with water. जब पानी में जो CO2 होती है, suppose CO2 is available in the atmosphere and that is coming in the contact with water, so then carbonic acid is formed in that case, जो कि एक weak acid होता है. इसकी जो रिएक्शन होती है CO2 की और पानी की, तो उसमें कार्बोनिक एसिड बनता है, और वो कार्बोनिक एसिड क्या करता है, उनमें सम कार्बोनेट्स दैट इज बीइंग क्रिएटेड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये उसमें बन जाते हैं. तो ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अगेन विदरिंग करते हैं उसमें, जो रॉक्स को रिड्यूस करता है बाय दैट वियरिंग एंड टियरिंग. सो दीज टू वी हैव डिस्कस यस्टरडे. नेक्स्ट इज दैट इज हाइड्रेशन. Hydration, that means again this is a action with the help of water only. अब इनमें some of the minerals are having the characteristics, then when these minerals are coming in contact, they are expanding, and after some time these are contracting also. Means इनका contract और इनका expansion होता है, that is going on alternately. Sometimes it is expanding and sometimes it is contracting. ये कभी तो फैलता है और कभी सिकुड़ जाता है. So because of that action also withering is taking place. Again take the example of some minerals like what we can say, calcium sulfate. Calcium sulfate एक mineral है, when it is coming in contact with water, so that is converting into gypsum. ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है, ये जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू जिप्सम, जो कि कैल्शियम सल्फेट से भी अनस्टेबल होता है. मींस वो एक तरह से फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, एंड दिस इज रिवर्सल एक्टिविटी ऑल्सो. ये एक्सपेंड भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, मींस सिकुड़ भी जाता है आफ्टर सम टाइम. तो ये जो रिपीटेडली दिस एक्शन इज टेकिंग प्लेस, कभी मींस एक्सपेंड हो जाता है और फिर से सिकुड़ जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो क्रैकिंग डाउन ऑफ रॉक्स दैट इज टेकिंग प्लेस. तो ऐसे में भी विदरिंग होती है, जो कि हम काफी कुछ हद तक जैसे किस में देख सकते हैं, दैट वी कैन सी इन दैट लाइमस्टोन ऑल्सो. लाइमस्टोन में भी क्या होता है, जब ये गीला होता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, और फिर जैसे उसको छोड़ देते हैं तो समटाइम इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग ऑल्सो. तो ऐसे में जब ये बार बार होता है तो ये वियरिंग एंड टियरिंग इज टेकिंग प्लेस इन दैट पर्टिकुलर rocks where these type of minerals are available. Clear? Then इसमें if we see some sort of exfoliation and that grains are just disintegrating in this case. Exfoliation क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो पहले की शेप होती है that is changing into some other form. तो ये इसको exfoliation बोलते हैं. और granules कैसे बनते हैं, जो क्रिस्टलाइजेशन टाइप में होता है, उसके कुछ क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो कि इसकी इनिशियल फॉर्म नहीं होती. देन कम्स दैट लास्ट स्टेज ऑफ केमिकल विदरिंग, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सी इन वेदरिंग सम ऑक्साइड्स आर बीइंग फॉर्म्ड व्हेन
that any of the mineral that is coming in contact with oxygen. जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं कुछ मिनरल्स लाइक आयरन, टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन, जिसमें ऑक्साइड्स बन जाते हैं व्हेन दिस इज कमिंग अंडर इन द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन. यू मस्ट हैव सीन जब हम लोहे आयरन को ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, सो दैट आयरन इज दैट चेंजिंग इट्स कलर. तो मोस्टली ये रेडिश कलर से ये ब्राउनिश कलर में हो जाता है, कभी कभी येलो कलर में भी आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. और जब ऐसी प्रोसेस होती है, ऑक्साइड्स बनते हैं, सो विद दैट पर्टिकुलर मिनरल इज बिकमिंग वीक, वो कमजोर हो जाता है और वो इवन जल्दी टूट जाता है. सो दैट if some of the minerals like iron is lying in particular rocks और वहां पर ये ऑक्सीडेशन होता है, तो ऐसे में वो जो मिनरल्स होते हैं वो उसको रॉक्स को वीक कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दैट रॉक्स दैट इज स्टार्टिंग ब्रेकिंग डाउन. देन अगेन वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज रिडक्शन. यस शिवांशु, एनीथिंग? सर ये जो रॉक्स का कलर होता है वो नेचुरल होता है या कोई डिजास्टर की वजह से? यस, नेचुरल होता है. और क्या तू पेंट करके आता है उनको? एवरीथिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नेचुरल ओनली. नेचर से ही सारे कलर होते हैं. लेट इट बी रेडिश कलर, लेट इट बी ये तूने मिस किया है, उसमें हम मान सकते हैं कि ये जो रॉक्स मिनरल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी फीचर्स उसमें आता है, ये कि अलग अलग जो रॉक्स होती हैं उनके अलग अलग कलर भी होते हैं. ओके, दैट इज नेचुरल प्रोसेस. इसमें कोई थोड़ी बनाता है इनको, रॉक्स को कौन बनाता है? अपने आप बनती हैं ये रॉक्स. तो दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस. ओके, सो दूसरा पॉइंट था इसमें रिडक्शन. रिडक्शन इसके उल्टा है. ऑक्सीडेशन मींस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, दैट टाइम ऑक्साइड्स आर बीइंग फॉर्म्ड, बट व्हेन दीज मिनरल्स आर कमिंग in the particular situation where oxygen is not available, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, that time reduction is taking place. जो इवन हम आयरन में ही कर सकते हैं कि जब आयरन का कलर चेंज होता है when it is coming under that oxygen, under the contact of oxygen, उस टाइम पे ऑक्साइड्स बनते हैं, उससे वीक होती है. लेकिन when oxygen is missing in that particular process, that time reduction is taking place. उसमें क्या होता है कि उसका जो पाउडर, कई बार देखा होगा जिसको हम कोरोजन बोलते हैं, जंग लग जाता है आयरन के अंदर, तो वो जो रिडक्शन है वो जंग से निकल के उसमें जो कई बार देखा हो आयरन हम खुला छोड़ देते हैं, तो जब वो ऑक्साइड्स बनते हैं उसके बाद धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद उसमें से वो उनका जो ऊपर का जो पाउडर टाइप झड़ जाता है. तो दैट इज रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस व्हेन दैट ऑक्सीजन इज एब्सेंट समटाइम्स in that particular situation. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये लगभग एक ही मिनरल में होते हैं. सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन, देन both activities are taking place in iron. Oxidation in the presence of oxygen and reduction that is in the absence of oxygen. So these mostly these chemical withering process, that is suppose we take oxidation, then carbonation and hydration, they are going hand in hand. मतलब ये एक साथ लगभग चलती हैं, ये एक दूसरे के साथ इन द एसोसिएशन ऑफ वन अनदर, ये सारी एक साथ लगभग होती हैं, जिसकी वजह से विदरिंग इज टेकिंग प्लेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल विदरिंग प्रोसेस, लेट इट बी ऑक्सीडेशन, देन कार्बोनेशन एंड दैट इज हाइड्रेशन, ये तीनों के तीनों लगभग एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं, एंड उसके बाद विदरिंग इज टेकिंग प्लेस. देन कम्स फिजिकल विदरिंग. ये तो था केमिकल विदरिंग. नेक्स्ट इज फिजिकल और मैकेनिकल विदरिंग. इसमें भी हम मान सकते हैं कि विदरिंग जो होती है, इन दैट सम सॉर्ट ऑफ फोर्स जो है, स्ट्रेस जो है, उसकी वजह से इसमें विदरिंग होती है. तो इनमें कुछ फोर्स अप्लाई किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट यू कैन से फिजिकल फोर्स दैट इज अप्लाइड.
on the landforms of earth surface. अब इसमें पहला क्या है, that is gravitational force. ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसमें किस किस टाइप का फोर्स या स्ट्रेस लगता है. इसमें हम प्रेशर की बात करें, समवेयर द प्रेशर इज एग्जैक्टेड, और प्रेशर जो होता है वो ज्यादा प्रेशर लगता है, दैट टाइम दैट फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग इज देयर. उसके बाद हम मान सकते हैं एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर. व्हेनेवर यू फील दैट देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, खासकर ड्राई एरियाज में, इन द डेजर्टेड एरिया, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और कभी कभी उसमें कम हो जाता है. डायरनल टेम्परेचर भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि डे एंड नाइट टाइम जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसकी वजह से भी वहां पर जो मिनरल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. तो उस एक्सपेंशन की वजह से भी हम मान सकते हैं weathering is taking place. Then third one is that is water pressure. जो पानी का जो प्रेशर होता है वो भी एक फिजिकल स्ट्रेस होता है. अब पानी किसी के ऊपर गिरता है, किसी भी रॉक्स के ऊपर गिरता है, तो कहीं ना कहीं उस पे जो फोर्स एग्जैक्ट होता है, मींस उस पे जो प्रेशर लगता है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इसमें विदरिंग होती है. एंड इन सम केसेस जो पानी है वो किसी रॉक को वेट कर देता है एंड आफ्टर सम टाइम इट इज बिकमिंग ड्राई. तो वेटनेस एंड ड्राइनेस, इसकी वजह से भी विदरिंग इज टेकिंग प्लेस, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो ये जो तीन फोर्स लगते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इसमें जो वाटर प्रेशर लगता है, एंड इवन सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. अब हम मान सकते हैं कि जो फिजिकल और इवन फिजिकल और मैकेनिकल जो विदरिंग होती है, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम हैपनिंग बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड इवन प्रेशर रिलीज. जो प्रेशर होता है और जो टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होता है, उसकी वजह से ज्यादातर ये जो फिजिकल और मैकेनिकल जो विदरिंग होती है वो उसी की वजह से होती है. नो डाउट ये पहले भी हमने बताया था कि दैट विदरिंग इज टेकिंग प्लेस इन ए स्लो प्रोसेस. स्लो तरीके से होता है, धीरे धीरे, और एंड इन ए स्मॉल एक्सटेंट वी कैन से, बट अगेन द इम्पैक्ट वी कैन सी इन द लॉन्ग प्रोसेस. बहुत टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो होता है वो भी कहीं ना कहीं लास्ट में उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ विदरिंग इज टेकिंग प्लेस, और उसमें अलग अलग टाइप की फॉर्मेशन बन जाती है. वो किस किस टाइप की फॉर्मेशन बनती हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन. अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन से क्या होता है, दिस इज अगेन फिजिकल प्रेशर इज जस्ट एग्जैक्टेड ऑन सम ऑफ द रॉक्स, जो कि अनलोडिंग, जो ज्योग्राफिकल टर्म है उसको बोलते हैं अनलोडिंग, कि कहीं ना कहीं किसी टाइप का लोड पड़ता है रॉक्स के ऊपर, तो उसमें सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस. और ये मोस्टली अनलोडिंग कहाँ होती है, वेयर दैट कर्व सरफेस आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया. मोस्टली ये साउथ में कर्व सरफेस जो होता है वहां पर होता कैसे है, लोडिंग क्या होती है, जब प्रेशर कैसे लगता है, दैट इज पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस, और अर्थ सरफेस के पैरेलली ये प्रेशर लगता है कि जो बीच में जो राउंड शेप की जो सरफेस है वहां पर बीच में तो ये जो विदरिंग है ये कम होती है, लेकिन दोनों साइड में इसमें विदरिंग ज्यादा होती है, मींस वीयरिंग एंड टेयरिंग टेकिंग प्लेस वेयर द कर्व सरफेस आर देयर. तो कर्व सरफेस जो होते हैं वहां पर इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी कर्व होती है, लाइक रॉक्स जो होती हैं, तो उनमें दोनों एंड पे उनके अंदर ज्यादा विदरिंग होती है और बीच में कम होती है. बिकॉज ऑफ दैट सम डोम टाइप शेप इज फॉर्म्ड, उसको हम बोलते हैं दैट इज एक्सफोलिएशन डोम्स. तो इस टाइप की अनलोडिंग के अंदर जो विदरिंग होती है, जो दोनों एंड पे, उस फॉर्मेशन के दोनों एंड पे ज्यादा विदरिंग होती है एंड बीच में कम होती है, उसकी वजह से सम एक्सफोलिएशन डोम्स आर क्रिएटेड. तो ऐसे प्रोसेस के अंदर जो एक्सपेंशन होता है उसमें क्या बनते हैं, एक्सफोलिएशन डोम्स बनते हैं. उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है इस फिजिकल वेदरिंग के अंदर, दैट इज देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर में जो चेंज होता है, बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस.
क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, स्पेशली इन ड्राई प्लेसेस, ड्राई इन द सेंस जो डेजर्ट एरिया है उनमें इस टाइप की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ पर जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इसमें एक्सपेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। एंड इवन आफ्टर सम टाइम जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो एक्सपेंशन जो होता है वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इज टेकिंग प्लेस। दैट मीन्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर में इतना चेंज होता है तो उस रॉक्स, जो वहां पर रॉक्स होती हैं जिस पे ये टेम्परेचर अप्लाई होता है, और वहां पर जो वेदरिंग होती है दैट इज अदर देन व्हाट वी हैव सीन इन डोम एक्सफोलिएशन। जो एक्सफोलिएशन डोम टाइप की बनती थी उससे थोड़ा सा अलग हटके, बिकॉज दिस इज द अनदर प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर की वजह से होता है, उसमें था अनलोडिंग की वजह से। तो ये जो टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से सम बिग बोल्डर्स आर फॉर्म्ड। बिग बोल्डर्स क्या होता है, बड़े बड़े मीन्स जो पार्ट हैं रॉक्स के उनमें बड़े बड़े पत्थर टाइप में बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं जो कि क्या बोले जाते हैं, बोल्डर्स और एक्सफोलिएशन टोर्स बोले जाते हैं। जियोग्राफिकल टर्म्स में उनको क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन टोर्स, TORS। जो डोम शेप है उनको एक्सफोलिएशन डोम बोलते हैं, और जो एक अलग टाइप की शेप जिसमें डोम टाइप शेप नहीं बनती है उसमें जो भी विदरिंग होती है उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स बन जाती हैं जो मेन रॉक से सेपरेट हो जाती हैं। इस टाइप के बोल्डर्स को हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन टोर्स बोलते हैं। सो इनमें मेन डिफरेंस यही होता है इनकी शेप का, अदरवाइज इसमें जो फॉर्मेशन है वो डोम शेप जो होती है वो भी उन्हीं रॉक्स के अंदर होती है, और जो एक्सफोलिएशन टोर्स जो बनते हैं दैट इज ऑल्सो इन द सेम टाइप ऑफ रॉक्स, लेकिन उसमें एक्टिविटी अलग होती है। एक में अपलोडिंग अंदर सॉरी अनलोडिंग की वजह से होता है, और दूसरे में टेम्परेचर जो ज्यादा होता है उसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, फैलना और सिकुड़ना, ये जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से उसमें जो बोल्डर्स बनते हैं बड़े बड़े उनको एक्सफोलिएशन टोर्स बोलते हैं। देन कम्स फ्रीजिंग, thawing and frost wedging. This is also the one of the activity and coming under physical that weathering. अब इसमें क्या होता है, फ्रीजिंग। जब पानी किसी पर्टिकुलर क्रैक्स के अंदर घुसता है और समवेयर यू विल फाइंड दैट टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो उसमें वो पानी उसके अंदर क्या करता है, जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो फ्रीजिंग होने के टाइम पे यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज बिकमिंग मोर। जब फ्रीज जो जैसे बर्फ बनती है तो बर्फ के टाइम पे पानी का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो नेचुरली जो उनमें क्रैक्स होते हैं वो वाइडन हो जाते हैं, लेकिन फिर से वो मेल्ट होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। तो ये हाई एंड लो टेम्परेचर में जो इसकी फ्रीजिंग एंड थाविंग जो होती है उसकी वजह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम फिर से होता है, वो भी कहीं ना कहीं वेदरिंग करता है। सो दैट इज कमिंग अंडर फ्रीजिंग, थाविंग एंड फ्रोस्ट वेजिंग। फ्रोस्ट वेजिंग क्या होता है कि बीच में जो गैप बन जाता है उसमें पानी फ्रीज हो जाता है, उसकी वजह से अगर वेदरिंग होती है दैट इज वेजिंग। So I think time is almost over. So next we will cover in the next class. So up to here you should revise everything before coming to the class tomorrow. Okay.